Sanjay Singh was also the Aam Aadmi Party representative in the opposition India bloc meetings, and the India bloc has come out to hit out at the Narendra Modi government. Earlier, you heard Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who said this is political vendetta. Let's listen in to other leaders of the India bloc who say this is nothing but misuse of ED to fix the opposition. Clear-cut vindictive action against him, and indirectly Mr. Kejriwal, who happened to be Chief Minister of Delhi. Nowadays, these agencies, with the CBI, with the ED, is practically used against the political leaders who doesn't choose to present government. 6 or 7 of my colleagues who are not with me today, they are gone to other side. They personally came and saw me, and they told me, we have no choice, we have to take decision. You should take decision, that is myself, and associated with us, and so forth, present setup, present government. Otherwise, we have to go inside. कल जो है पत्रकारों पे कार्रवाई होती है, आज आम आदमी के एमपी जो है पार्टी के संजय सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार जो है कर लिया गया। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो रीजनल्स पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सवाल पूछिएगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो वहां आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस किसी इरेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए, और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा, तो ये एजेंसीज का मिसयूज है। So you heard Arvinder Singh Lovely there saying, if there is evidence, then arrest, not on the basis of non-cooperation in investigation. So, Enforcement Directorate, after 11 hours of questioning earlier today, they arrested Aam Aadmi Party Member of Parliament Rajya Sabha Sanjay Singh. The probe agency has alleged that Sanjay Singh played a key role. These words are very critical. Sanjay Singh played a key role in the formulation and the implementation of the new excise policy of the Delhi government, and the complaint is, or the investigation is on the lines that this excise policy, since abandoned of course, benefited certain liquor manufacturers, wholesalers and retailers. The Enforcement Directorate has said that Dinesh Arora is a very key name in this investigation. He was a middleman, an accused in the case who's since turned approver. The ED claims he met Sanjay Singh during a party at his restaurant, and this restaurant was Unplugged Courtyard. Now, according to the Enforcement Directorate, the Aam Aadmi Party called Sanjay Singh's arrest a political witch hunt. The Enforcement Directorate, of course, claims that this is where they have evidence of money transaction, money that was allegedly paid by Dinesh Arora to the Aam Aadmi Party for elections, and also certain favors that had been granted to Arora and some of his associates. The Aam Aadmi Party insists that the BJP is resorting to very desperate measures, as according to Atishi, Delhi minister, Aam Aadmi Party minister, the BJP is staring at a defeat in 2024 Lok Sabha elections, with the opposition alliance coming together. Lots of reactions coming in. Listen in. ये पहले से एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट था कि जाएंगे, 8 घंटे बैठेंगे और फिर कहेंगे कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी करी। ये भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। आज उनको भी पता है
कि चाहे आने वाले 4 राज्यों के चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का मन बना लिया है। और जब भी कोई तानाशाही की सरकार देखती है कि उनका समय आ गया है, तो उसके बाद यही सिलसिला शुरू होता है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और यही सिलसिला आज भारत में शुरू हो गया है कि चाहे पत्रकार हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, उनको एक एक करके चुप करने की कोशिश की जा रही है। आज भारतीय संसद में लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं और निराशा है, हार का डर है। बौखलाने के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इस पर गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। जैन साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। So big statement coming in from the Aam Aadmi Party member of Parliament Sanjay Singh just before he was arrested. He says, "Marna manzoor hai, darna manzoor nahi hai. Ready to die, not scared of the Narendra Modi government." And he described the Prime Minister as someone who's scared. Darpok was the word he used. Also called him a despot, a tanasha. Now, the BJP, of course, has also hit out at the proceedings, saying that this is due course of law being followed and the Aam Aadmi Party is trying to obstruct the wheels of justice. Listen in. ऐसे खाए हैं तो सच्चाई सामने आएगी ही।
संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप कितना भी शोर मचाते रहे, आज संजय सिंह की गिरफ्तारी से एक बात तो सच हो गई कि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई सामने आती है। संजय सिंह ने पहले दिन से शराब घोटाले में पैसे खाए थे और कल जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने तभी तय हो गया था कि संजय सिंह बच नहीं सकते, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने अपनी गवाही में पहले दिन कहा था कि जब वो अरविंद केजरीवाल के घर गए थे तो संजय सिंह वहां मौजूद थे। इसलिए तो हम कह रहे हैं, मिले जब कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल, अब देखिए होता है क्या। जब आप पैसे बांट रहे थे, करोड़ों रुपया ले रहे थे, तो भैया जेल तो जाना ही पड़ेगा, साफ तो देना ही पड़ेगा। अब कह रहे जी वेंडेटा पॉलिटिक्स है, अब अपने आप को सिंपैथी लोगों की लेने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो मासूम हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ते रहे। ये झूठ तो तुम पहले से भी बोलते थे, जब तुम कहते थे कि हम सेंट्रो कार में घूमेंगे, और उसके बाद तुम घूमते हो आजकल लैंड क्रूजर में 2-2 करोड़ रुपए की, कहते थे कमरे के मकान में रहेंगे, 50 करोड़ के मकान में रहते हो, कहते थे हम ट्रेन में जाएंगे, आजकल तो तुम प्राइवेट जहाज में जाते हो जिसका किराया भी 50 लाख रुपया है। तो तुमने केवल और केवल बेईमानी किया, लूटा है, और अब लूट का हिसाब मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, ये हिसाब आपको भी देना पड़ेगा। दिल्ली के शराब माफिया घोटाले का एक और अपराधी राज्यसभा सांसद संजय सिंह, अब वो भी तिहाड़ जा रहे हैं। दिल्ली के हजारों परिवार इन्होंने अपने शराब के खेल में बर्बाद कर दिए। आज दिल्ली की उन्हीं माता बहनों की हाय लगी है। विजय नायर भी जेल में है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, और अब संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में रहेंगे। कई सरकारी गवाहों ने यह कहा है कि उन्होंने पैसे केजरीवाल के कहने पर दिए। तो मुझे लगता है कि आंखों में जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सुनिश्चित है कि अंत अरविंद केजरीवाल का भी तिहाड़ जेल के अंदर ही होगा। पाप करने वाला, अपराध करने वाला चाहे कितना भी सयाना हो, उसको एक दिन उसकी सजा मिलती है। संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं और आज दिल्ली को फिर से विश्वास हुआ होगा कि गलत करने वाला कभी बच नहीं सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ये आंच सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक पहुंची है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के माताओं बहनों को तकलीफ दिया इस सरकार ने, ये आंच जल्दी अरविंद केजरीवाल जी तक भी पहुंचेगी। देखिए, कानून अपना काम करेगा और कहीं भी अगर प्रमाण मिलता है कि लोगों ने भ्रष्टाचार किया है या वैसे आरोप है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। न्यायालय अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है, अधिकारी अपना काम करते हैं और राजनेता राजनीति करते हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि अगर भ्रष्टाचार कहीं है और उसके संकेत मिलते हैं, उसका सूत्र मिलता है, तो एजेंसियों का काम है उसका तहकीकात करना। इस पर किसी की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।